today. Tell me, what shall I start today? Welcome to my channel, Study Up. Hello guys. Today I will start the new chapter. Yesterday I have chemical bonding completed, and the questions will be given just later. Just go through the video and read it thoroughly. Then I will give some questions, and questions will be answered from that video. You will be asked. If you not, then I will solve. Okay. So today I will start tell the most important things in everybody's प्रत्येक के लिए जरूरत है, उसका बिना हम अधूरा है. क्या है? कौन है? बोलो कौन है? उसका बहुत ज़रूरत है हम सब के लिए. उसका ज़रूरत है. कमेंट करो क्या है, क्या हो सकता है. बहुत ज़रूरत है. तुमको भी, हमको भी, उसको भी. जो यूनिवर्स में जो है प्रत्येक के लिए वो ज़रूरत है. बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है. वो बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है. We cannot sustain without that. What is that? Tell me. I am giving a clue. This is that. What is that? Guess किया? यस, गेस किया. हमने तो गेस क्लू दे दिया. वाटर है, पानी है, जल है. चलो टुडे आई विल स्टार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. Okay, let's start water and water treatment system, water management system. So water का ग्राफ कैसे हो? So tell me what is the importance of water. All you know. So I will not bother about all these things. Very little trivial things. Just which will be in the exam and which will be in your, that will discuss. Class 7, 8 में तुम already have done, have read it. So water का formula क्या है? H2O. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. वाटर का ओरिजिन क्या है? सो मेनी ओरिजिन्स आर देयर. व्हाट इज स्टिल वाटर, व्हाट इज रनिंग वाटर, व्हाट इज सरफेस वाटर, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर. ऑल आर देयर. सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट. ओके. सो सोर्सेस ऑफ वाटर. सो जस्ट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द वाटर एंड मेनली treatment of water. This is the soft water, hard water, why hardness, why softness. Okay, all these things I will discuss, and how to remove the water of hardness of water, दो में टेम्प्रोरी हार्डनेस हो, परमानेंट हार्डनेस हो, जो भी हो. एंड सम यूनिट्स ऑफ वाटर, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड. व्हाट इज EDTA एंड सम numerical problems. All I discussed in 2 or 3 videos. Okay, it can be done in one shot, and that video will be lengthy. So I do not to be lengthy one. For yours request, you requested me do not to be lengthy, but discuss a detailed discussion is required to you. So I will discuss one by one. Let's try. At the first, tell me, a sample is given. Liquid is given. It is water. Tell us, just simple thing. Whether it is water or not, how will you decide whether it is water or not? Just water cannot. Maybe acid, maybe base, other than things. Water should be, how to examine whether it is water or not. See, correct. So what is correct? So one thing is correct. Another thing, first thing, in a pure state, what you know, the freezing point of water is 0 centigrade. All we know, freezing point equals to 0 centigrade. BP, boiling point, equals to 100 degrees centigrade. This is the pure state of condition of water. One thing, it will be clear. Another thing, if you, in case of water, if in this water if you add copper sulfate, white copper sulfate to be added. If it is water, if it is pure water, this white color of the copper sulfate turn what? CuSO4 डॉट H2O. ये जो है एक कलर चेंज हो जाएगा. क्या कलर होगा? ब्लू कलर हो जाएगा.
the white color will be changed into blue. So that is the conformation of water. Besides this, if you pass CaC2 calcium carbide with water, इस water में calcium carbide you pass it, you pass calcium carbide CaC2 calcium carbide, तो क्या होगा calcium carbide पास होने से? और ऑब्वियसली इन कोल्ड वाटर, नॉट इन हॉट वाटर. कोल्ड वाटर में जब पास करो तो एक कोल्ड वाटर है तो क्या होगा, इसमें थोड़ा एसिटिलीन फॉर्म करेगा, CtH2 एसिटिलीन फॉर्म करेगा. ये एसिटिलीन का साथ उसका अंदर थोड़ा अमोनियम जो सॉल्यूशन है, दैट इज द NH4OH है, उसका अंदर Cu2Cl2 कपड़ा क्लोराइड डाल दो. Cu2 अमोनिया का सॉल्यूशन होना चाहिए, NH4OH होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द श्योर टेस्ट. एसिटिलीन बन गया, वो एसिटिलीन का अंदर कॉपर क्लोराइड विथ अमोनियकल सॉल्यूशंस, देन द कलर विल बी रेड प्रेसिपिटेट and it will be Cu2C2 का रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा. That is the water. So many tests are there. This is the normal text in laboratory, but normally you can do it, find it. Suppose somebody given you how you detect this is water. This is the system. Okay, so do this. Okay, write it. Okay, note it down. Screenshot ले लो. Okay, pause करके कर लो. Okay, then I am coming to water and directly the water treatment, which is very important. Why should we drink the pure form of the water? What type of water should we drink? You should have to know. तो वाटर क्या होता है, वाटर का बगल में वाटर के लिए बहुत जाम होता है, बहुत डिजीज होता है. इंडस्ट्री जो है, लेदर इंडस्ट्री है, टर्निंग इंडस्ट्री है, और लॉन्ड्री भी है, ये भी है. वाटर की बहुत ज़रूरत है. मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है. सो वाटर, जस्ट आई एम स्टेपिंग डाउन योर कोर्स. नेक्स्ट देखो, तो वाटर क्या होता है. वाटर का जो क्लासिफिकेशन है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. ओके, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. फर्स्ट, what is soft water? Soft water and hard water. Hard water. What is soft water? What is hard water? Okay, on the basis of the, on which basis it has been classified? On the basis of the dissolved what, the some salt, dissolved salt of some मेटालिक सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, उसमें डिपेंड करने के बाद वाटर की क्लासिफाई इनटू टू डेज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? नॉर्मली सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वाटर दैट डिजॉल्व सॉल्व इजीली, जिसमें सोप जो है, डिटर्जेंट जो है, उसमें इजीली डिजॉल्व होगा एंड रेडियली प्रोड्यूस फोम. वो जो फेना है ना, फोम लेथर, वो प्रोड्यूस करेगा. The water that dissolve with soap and radially produce what? Lather. That means produce produce lather. Lather और foam. वो फोम जो फेना होता है ना, साबुन घसने के बाद, डिटर्जेंट गुलने के बाद, वो तुरंत फोम व फेना लेथर प्रोड्यूस होगा रेडियली. दैट इज produce lather or foam radially, तुरंत. That do not radially produce foam. लिखो, foam or lather, LATHER foam do not radially produce foam or lather with soap or detergent is known as hard water. Clear? The soft water क्या है? Example, all rain water is the soft purest form of water. Distilled water example जो देना है, rain water बोल सकते हो. तो बस distilled water is the soft water, distilled water, rain water. ओके, और जो वाटर है अगल बगल में तुम्हारा जो है, और हार्ड वाटर, रिवर में वाटर है तुम्हारा, जो सी का वाटर है, पॉन्ड का वाटर है, कोई
सोर्स ऑफ वाटर का हार्ड वाटर होगा। तो सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर। ओके, तो ये जो हार्ड वाटर है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस? हार्डनेस क्या है, हार्ड होता क्यों? इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, सॉफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्ट वाटर यूज़ करने से हमारा बॉडी भी, हमारा आँख भी, हमारा बाल भी कुछ नहीं होता है। और इंडस्ट्री में कोई यानी कहीं में सीमेंट इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो, टैनिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी सॉफ्ट वाटर का प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत एसेंशियलिटी है एंड बेनिफिशियरी भी है। बट व्हाट इज, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम हो रहा है सब किसके लिए, स्पेसिफिकली इन इंडस्ट्री में, कंपनी के लिए ये हार्ड वाटर बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग करता है। ओके, हार्ड वाटर। तो व्हाट इज हार्ड वाटर, दिस इज, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस? हार्डनेस का कॉज क्यों है? कॉज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का कॉज, कॉज ऑफ हार्डनेस, I have told you earlier that I will discuss only that topics you have to have right and read, not the details, because you are students of engineers. So don't require too much in language and elaborate way. You have to just to the point, because you're the engineer. In second semester, in second year, you will do in your respective your main subjects. सो फर्स्ट ईयर के लिए ये जरूरी है थोड़ा जानने का, एंड दैट्स आई एम डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, नॉट रिक्वायर्ड टू मी एक्सप्रेस माई सेल्फ, माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, नॉट व्हाट इज इजी, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट इज द थिंग। ओके, आई एम गिविंग ए सो मेनी थिंग्स, यू विल नॉट द कैपेसिटी टू टेक इट। सो द कॉज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का क्या है, हार्डनेस का कारण क्या है? देखो, जो पानी है, जो जल है, उसमें उसका अंदर थोड़ा क्या है होता है, डिजॉल्व सॉल्ट होता है। क्या क्या सॉल्ट होता है? क्लोराइड का सॉल्ट होता है, सल्फेट का सॉल्ट होता है, कार्बोनेट का सॉल्ट होता है और बाइकार्बोनेट का सॉल्ट होता है। ये जो डिजॉल्व जो तुम्हारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये जो है, सोडियम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये जो है, ये जो मेटल है, इस मेटल का जो सल्फेट है, ये मेटल का जो क्लोराइड है, ये मेटल का जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, दिस मेटल का बाइकार्बोनेट सॉल्ट, दिस मेटल का क्लोराइड सॉल्ट, दिस मेटल का सल्फेट सॉल्ट। इस कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन का बाइकार्बोनेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट एंड क्लोराइड सॉल्ट डिजॉल्व होने से, दिस सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर, and that causes the hardness of water. Yes, that causes the hardness of water. The hardness of water is due to the presence of bicarbonate and non-bicarbonate salt in water, with water. Okay, water में ये सब salt dissolve होता है. Clear? So what we can conclude? We can conclude the hardness of water can be classified two types. एक है temporary hardness, एक है permanent hardness. एक है टेम्पोरारी हार्डनेस, वो जो स्टेबल और नॉन स्टेबल हार्डनेस। हार्डनेस क्या है हो गया, हार्डनेस का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, हम लोग बताया। हार्डनेस जो है उसका है टू टाइप्स, एक है परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोरारी हार्डनेस। टेम्पोरारी स्थायी नहीं, temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness and permanent. बंगाली में स्थाई, अस्थाई, ये है स्थाई, स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये अस्थाई हिंदी में, स्थाई, अस्थाई एंड स्थाई। ओके, तो व्हाट इज टेम्पोरारी हार्डनेस, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस, हमने बताया। अच्छा, उसके पहले परमानेंट हार्डनेस जो है, टेम्पोरारी हार्डनेस है जो जिसका पास, जिस वाटर में द टेम्पोरारी हार्डनेस और
bicarbonate hardness. Bicarbonate hardness you can tell due to the presence of soluble bicarbonate salt. Temporary hardness क्यों होता है? Temporary hardness होता है because due to presence of bicarbonate salt of बाइकार्बोनेट का सॉल्ट कितना है HCO3, ये किसका? वो मैग्नीशियम का, वो क्या है कैल्शियम का, वो आयरन का। वो आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम का बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट है वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट डिजॉल्व होने से टेम्पोररी हार्डनेस होता है। क्लियर? एंड परमानेंट क्यों होता है? ये भी सेम है। ये क्या है? क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट। ये मैग्नीशियम कैल्शियम एंड आयरन का की सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी। तो मीन्स ये जो है टेम्पोररी परमानेंट जो हार्डनेस है यह है ये बाइकार्बोनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन, ठीक है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट जो होता है ये डिजॉल्व होता है वाटर का साथ, मिनरल के साथ, इसलिए ये परमानेंट बा स्थायी हार्डनेस व खरोता, बांग्ला में खरोता होता है। ओके, सो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। टेम्पोररी हार्डनेस तो कोई नहीं है, अस्थायी है, इसको हैव टू रिमूव एंड दिस ऑल्सो हैव टू रिमूव बिकॉज ये लेने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। वी हैव टू ड्रिंक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। व्हाट टाइप ऑफ वाटर वी शुड हैव टू ड्रिंक, यू लर्न क्या क्या किस टाइप का वाटर हमको ड्रिंक करना चाहिए, क्या क्या। देखो जो वाटर होता है वो मस्ट भी क्या होगा, वो दैट इज द फ्री जर्म फ्री वाटर होना चाहिए, एक नंबर। इट शुड नॉट कंटेन एनी नाइट्रेट और एमोनिया, यानी सॉल्युबल नाइट्रेट और एमोनिया नहीं होना चाहिए उसमें। इट डू नॉट कंटेन इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड impurities should not be contained in our drinking water. The drinking water should be germ free, should not contain any nitrate soluble, salt soluble with nitrate, soluble with ammonia and suspended impurities. And it should not contain of any salt of copper and lead. कॉपर सॉल्ट, लेड का जो सॉल्ट, आर्सेनिक भी होगा, कोई ये सॉल्ट है ये नहीं होना चाहिए उसमें। और क्या है, इट मस्ट कंटेन, इट में कंटेन सोडियम था, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का सॉल्ट जो है वो डिजल्व होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज द सिस्टम, दिस इज द क्राइटेरिया टू फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सो वी हैव टू remind how to remove this permanent and temporary hardness of water, because temporary hardness and permanent hardness, both of these causes so many diseases. eye problem, stomach problem, direct हमको हमारा जो एलिमेंट्री चैनल जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज वेरी रेडिली अफेक्टेड। सीमेंट इंडस्ट्री जो है, टैनिंग इंडस्ट्रीज है, बॉयलर इंडस्ट्री है, प्लांट जो है, बेसिकली कंपनी का बहुत लॉस होता है। ये जब सीमेंट जो सेटिंग टाइम, इट कैन रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। समुद्र पानी के लेने के बाद जो सीमेंट कारखाना जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो वाटर को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो वाटर ट्रीटमेंट आई विल टीच यू हाउ टू ट्रीट how to water waste management, all are things there. Okay, so permanent hardness or temporary hardness, we can dissolve, we can remove. उसके पहले we have to tell something, you have to know what is deionized water. Tell me what is deionized water. तुम डिस्टिल वाटर का पानी पीते हो, deionized वाटर की, डिस्टिल वाटर की, मिनरल वाटर की, तुम बोलो मिनरल वाटर ले आओ बाजार से, चलो पी ली। व्हाट इज मिनरल वाटर, व्हाट इज डिआयोनाइज्ड वाटर, व्हाट इज डिस्टिल वाटर, मालूम है? तो व्हाट इज डीआयोनाइज्ड वाटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीआयोनाइज्ड एंड डिस्टिल वाटर, पहले बोलो। तो डीआयोनाइज्ड वाटर क्या होता है? डीआयोनाइज्ड वाटर होता है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट इज इन ए
Deionized water is in a free water. This is ion-free water. Deionized. That is the ion-free water. That is water in which contain no dissolved electrolyte. That is no ion, cation or anion except H plus or OH minus ion. I am not writing all these things. Only H plus ion or OH ion minus रहेगा. We have deionized water. It is the mineral free water, ion free water. And what is distilled water? Distilled water is the purer form of water. Yeah, purer form water, and in which it do not contain any organic impurities. Organic impurities, इसमें कोई organic impurities नहीं होना चाहिए. क्या डिस्टिल वाटर में आयन है लेकिन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगा, लेकिन ऑल अदर आयन्स विल बी डिजॉल्व देयर. दैट इज द डिफरेंस डियोनाइज्ड वाटर एंड डिस्टिल वाटर. क्लियर? पच करो, लर्न करो, पच करो, स्लो करो, लर्न करो. क्लियर? सो एक one thing I will discuss, then I will go to the removal of hardness of water. So is the hardness है, I have discussed what is hardness. What is the cause of hardness? I have discussed. The how to use measure the hardness of water. What is the unit of hardness of water? The unit जो है बहुत सारा यूनिट है. एक है ppm. ppm का मतलब क्या है? ये जो यूनिट, यूनिट ऑफ हार्डनेस. यूनिट ऑफ हार्डनेस पहले हम आई एम डिस्कसिंग, देन आई विल डिस्कस अबाउट द रिमूवल ऑफ हार्डनेस. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस? ppm, parts per million. parts per million इसका मतलब क्या है? 1 part of calcium carbonate. I will be treated with calcium carbonate. Why? I will discuss later. So 1 part of calcium carbonate equivalent hardness in 10 to the power 6 factors of waters. 10 to the 6 क्यों? I am coming 1 liter, तो मैंने parts per ppm parts per million. million में 10 to the power 6. 10 to the power 6 means ppm million. ओके, इसका अलग यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर. मिलीग्राम पर लीटर भी है. मिलीग्राम पर लीटर भी क्या है? सेम थिंग. द नंबर ऑफ मिलीग्राम of calcium carbonate equivalent to 70,000 parts of water divided by 70,000 parts of water में कितना मिलीग्राम है. इसका these two are very important unit. Beside this, 2 other units are there. Clark's degree also there. Yeah, French degree of hardness, Clark degree of hardness, the degree Clark. This is the degree. This is degree Clark है. फ्रेंच डिग्री होता है ये 10 to the 1 लाख में. फ्रेंच डिग्री फ्रेंच ये है. ये भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द कॉमन. ओके, इन 1 lakh parts of water. Say the one you must learn 1 milligram per liter equals to 1 ppm. बस write it. 1 milligram per liter equals to 1 ppm. Same thing. And I will prove. Not required to prove it. Just remind it. Proof is required in case of 11, 12. Not yours. Okay. So ppm. Clear? The ppm hardness, removal of hardness. I am coming. Okay. I am coming the removal of hardness or the process. So many processes are there. So what are the processes of removal of hardness? There are several processes of removal of hardness, both temporary hardness and permanent hardness. And as both, some processes are there both which be used to temporary as well as permanent hardness. And some processes are there only to remove temporary hardness. Some processes are there only to remove the permanent hardness. So what are the processes? Processes are first process. So by boiling of water. And number boiling process. Okay, boiling process. Number 2, washing soda process. Washing soda process by Clark process.
क्लार्क प्रोसेस भी बोलता है, क्लार्क प्रोसेस। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला जानता है? हाँ, सोडियम कार्बोनेट, जो टेम्पोररी भी है, परमानेंट भी है। वॉशिंग सोडा प्रोसेस परमानेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है कैल्गन प्रोसेस, परमोटेड प्रोसेस, परमोटेड प्रोसेस। परमोटेड, इसका अगल नाम है बेस एक्सचेंज प्रोसेस, बेस एक्सचेंज प्रोसेस। इसका अलग नाम है कैल्गन प्रोसेस, कैल्गन प्रोसेस ना, इसका अलग नाम है जियोलाइट प्रोसेस, सॉरी, जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट, जियोलाइट प्रोसेस, JDOLIT, जियोलाइट परमोटेड प्रोसेस, बेस एक्सचेंज प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम थिंग है। ओके, अब प्रोसेस है कैल्गन प्रोसेस, कैल्गन प्रोसेस है, कैल्गन प्रोसेस, कैल्गन प्रोसेस। और भी एक प्रोसेस है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज process. All are these are the simply physical process, but all these what is permutate, what is calgon, what is zeolite, all these are the these are the chemical things. They are the chemical used to reduce the permanency, permanent hardness. But this boiling and washing soda is merely process, just boil it and complete. But permanent hardness जो है बहुत खतरनाक है, बढ़िया खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। वो अस्थायी रूप से है नहीं है, वो स्थायी रूप से स्टेबल है। सो उसको रिमूव करने के लिए ताकत वाला प्रोसेस जरूरत है। और ताकत वाला प्रोसेस क्या है? परमोटेड प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस है एंड कैल्गन प्रोसेस है। तो व्हाट इज परमोटेड, व्हाट इज कैल्गन, व्हाट इज दिस? तो कैल्गन परमोट का बहुत जरूरत है। परमोटेड होच्छे क्या है বা जियोलेट क्या है, इसको बिजनेस नेम है, ट्रेड नेम है। तो सोडियम एल्यूमिनेट, I am writing just process, not process I will discuss later, just I am giving the what is permuted क्या है देखो, and what is आज ठंडा बहुत, थोड़ा काम है सब बच्चों, थोड़ा काम है। ये कॉफ़ी पिलाना चाहिए कॉफ़ी। ओके देखो, परमोटेड क्या है और कैल्गन क्या है? परमोट सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थो माने सोडियम माने Na2, एल्यूमिनियम माने Al2, ऐसे लिखो सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट Si2O8.XH2O। इसका नाम है क्या? इसका नाम है परमोटेड। ये भी हो सकता है। और Na2O Al2O3, Na2O डॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डॉट SiO के Si2 होगा ना, SiO होगा, SiO2 होगा। इसमें SiO2 होगा और for SiO2 थोड़ा वाटर यू कैन ऐड, दैट इज 2H2O। ये भी ये सेम है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। इसका नाम है परमोटेड। और जियोलाइट जो है इसका फॉर्मूला, ये जो से I will use to remove the permanent hardness. And what is कैल्गन? कैल्गन क्या है? कैल्गन जो है, कैल्गन ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल्स है। इसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। यह क्या हुआ? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, रे नहीं हो रहा है, हैं? सोडियम Na2 Na4 PO3 होल 6, Na2 Na4 PO3 होल 6, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा
मेटाफॉस्फेट। ये जो है इसका नाम है कैलगोन। सो आई विल डिस्कस हाउ टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। Okay, this is the formula of calgon. Remind it, it will come in exam, and it is the permuted or what? Permuted or क्या बोला? Permuted. And this is calgon by zeolite. JDOLIT. पानी में हम यूज करते हैं ना zeolite, zeolin यूज करते हैं zeolin. Yeah, nothing else. So next block, just I am tasked. The next block, the temporary and permanent hardness, how to remove. Okay, thank you. Bye.